जय हिंद, जय श्री राम। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। आरंभ करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Anand, let me say it very clearly as I ever said it. Vishnu Jain is fighting to reclaim Sambhal. He is getting death threats. Gaurav Bhatia is fighting to reclaim Mathura. He is getting death threats. At what point will Indians stand up and say enough is enough? Let me be clear. You can subjugate 20 generations, but not the 21st. Keeping the most sacred of places away from Indians, not just Hindus, because this is a civilizational issue, not a religious one. Keeping them away is untenable now. Ayodhya, Gyanvyapi, Mathura, Bhojshala, and now Sambhal. Today, when I see the rights of our ancestors being reclaimed, I see this as a catharsis, as a deliverance of justice to my ancestors who were wronged. Anand, they say history is a medicine. Well, it has been a very bitter medicine for the Hindus. Our leaders feared the consecration of Somnath would herald Hindu revivalism and we stayed silent. Our leaders gave away the most sacred Krishna Janamsthan fraudulently to the predatory Eidgah side and we stayed silent. Our leaders promulgated the Evil Places of Worship Act to deny us our legitimate right to reclaim our temples and we stayed silent. But today, the forlorn Nandi outside Gyanvyapi unbuckles its legs, for he has heard Ram Lalla's giggle. The baby Krishna buried under the steps of Jahanara Mosque stirs to life, for he has witnessed Ram Lalla's crawl, and Kalki at Sambhal jerks the reins of his horses ready to rush in as ordained. Every demolished temple must be resurrected, every shivling unearthed, every idol reclaimed. Anand, when one goes by logic, morality, first principles, objectivity, as science and law teach one to do, numbers do not matter. 4 or 40 or 40,000, each and every cry for justice must be heard. But when one goes by fear, emotion, coercion, subjectivity, numbers matter. Decide where you stand. Will you, for example, say, let us demand reopening of just 3 cases of atrocities against Kashmiri Hindus, only the most prominent ones, Neelkant Ganju, Girja Tiku, Lassa Kaul? No need to trigger confrontation and hurt sentiments of the other community by asking for reopening of 29,997 other cases. Anand, nations weaken not because of their past, but rather by how they are taught it. And for 70 years, we've been taught to forget historical injustices. From Somnath to Kashi Vishwanath, Babarpur to Bakhtiarpur, Allahabad to Aurangabad, from Matan to Mathura, these injustices have deliberately been made visible to lionize the debasement, celebrate the humiliation. If the Muslims wanted, they could have removed all idols from Gyanvyapi or the Jain and Hindu relics from the Qutbul-Islam mosque, but they did not, because they wanted to humiliate Hindus, lionize the debasement. In the end, hubris has led to the downfall. Sadly, Anand, history written by the victors is peddled by the vanquished, and we remain vanquished. To me, just 30 seconds, one of the most barbaric legislations ever enacted in India is the 1991 Place of Worship Act. But in 2019, the virtue signaling Supreme Court in its Ayodhya judgment willfully ratified this act that obligates maintaining all religious places as they were on August 15, 1947. Historical injustices can now not be addressed unless Parliament overrides it. A legal recourse to correct historical injustice cannot be denied in a democracy. And this is not a Hindu issue. I, as a Darwinian atheist, demand the abrogation of Place of Worship Act. Anand, just 30 seconds. If a mosque had been demolished by a Hindu king and a temple built on it, I, a kafir and an atheist from whom Islam sanctions death penalty, would have fought for the rights of Muslims to legally take back their mosque. The Supreme Court said, quote, there is a purpose underlying enactment of Place of Worship Act. The law speaks to our history and to our future, unquote. I am sorry. This law airbrushes our history, destroys our Dr. future. Ranganathan. It must go. Kalki must come. मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप लोग देख सकें। कमेंट्स में आप क्या सोचते हैं ज़रूर व्यक्त कीजिए। आपका विचारधारा मेरे से एग्री करता है या डिसएग्री करता है, ज़रूर करिए, ताकि मेरे को आपका सोच पता चल सके। आप वीडियो कोई और रिकमेंड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो फिर इस वीडियो में हमारे आनंद रंगनाथन बात कर रहे हैं संभल में जो एक राइट हुआ है, उधर जो दंगे हुए हैं, खासकर इसलिए हुआ है क्योंकि उधर एक टेंपल हुआ करता था हमारा,
जैसे आप लोगों को पता है विष्णु शंकर जैन जी हैं जो ज्ञानवापी के जो मस्जिद है उधर एक हमारा विश्वनाथ मंदिर का गर्भगृह हुआ करता था, उसको छोड़ के दूसरी जगह हमने शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि इधर औरंगज़ेब ने हमारा मंदिर तोड़ दिया था। वैसे ही इधर बाबर ने एक मंदिर तोड़ दिया था हमारा, कल्की भगवान जो हमारे 10वें अवतार हैं विष्णु भगवान के, वो आने का जो स्थान है उधर उनका स्थान में एक मंदिर हुआ करता था, हरि का मंदिर। उस मंदिर में एक सर्वे कराने जा रहे थे हमारे विष्णु शंकर जैन, और आपको जैसे पता है संबल एरिया एक मुस्लिम बहुल एरिया है, और उस मुस्लिम बहुल एरिया में एक कॉल दिया गया मस्जिदों से और उनके एल्डर्स ने, उनके जो बुज़ुर्ग लोगों ने, कि आप इधर आके उपद्रव करिए। और उधर के जो एमएलए और एमपी हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने ये भड़काऊ बयान भी दिया गया था, क्योंकि इस सर्वे से पहले एक और सर्वे हुआ था, उधर अंदर जाके सर्वे नहीं किया था, उधर जो परिसर था उधर पूरा आज आजू बाजू सब जगह जाके सर्वे किया था। तो फिर इन लोगों ने, खासकर ये जो एमपी है ज़िया और रहमान, उन्होंने ज़िया रहमान बर्क ने उस ही एरिया में जाके अपना एक भाषण दिया था कि नेक्स्ट टाइम जब ये सर्वे करने आएंगे तो फिर आप उपद्रव कीजिए, आप पत्थर वत्थर लेके आइए। ये सब बहुत भड़काऊ बयान दिए थे इनके एमएलए और एमपी ने, और उस दोनों को ही ऊपर हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं और यूपी की गवर्नमेंट ने अभी एफआईआर भी दर्ज की है। तो फिर इसका एक परिसर बोलता हूँ मैं, वाई इज़ दिस इज़ हैपनिंग, क्यों ये हो रहा है? क्योंकि कुंदरकी में जैसे आप लोगों को पता है यूपी में 9 असेंबली में इलेक्शन हुआ था और उसमें से 7 बीजेपी जीत गया। उसमें से एक मुस्लिम बहुल एरिया कुंदरकी भी था, और उस कुंदरकी ये संबल जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंडर ही आता है, और उसमें बीजेपी जीत गया। एक अप्रत्याशित जीत हुआ क्योंकि 1,40,000 वोट से जीता है बीजेपी, और बहुत सारे जो मुसलमान हैं उन्होंने भी बीजेपी को वोट किया था। तो फिर उन मुसलमानों को ही भड़काने के लिए अभी ये हुआ है, मेरे को लगता है। और भी बहुत कारण है, ये जो मंदिर का जो सर्वे करने जा रहे थे उसका भी एक कारण है, और होना चाहिए क्योंकि हमारे मंदिरों को अभी भी कब्ज़े में रखा हुआ है। मैं तो बोलता हूँ कि ये जो 3-3-3 बोलते रहते हैं ना, आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, थोड़े से बीजेपी वाले, ज़्यादातर बीजेपी वाले तो बस राम मंदिर पे रुक जाते हैं, पर आरएसएस वाले भी अभी बोल रहे थे कि आप सारे मस्जिदों और गिरजाघरों में जाके शिवलिंग नहीं ढूंढ सकते, ढूंढेंगे, हमारा हक है। आप नहीं ढूंढना चाहते तो फिर दूसरे जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जैसे विष्णु शंकर जैन है और भी बहुत सारे लॉयर्स हैं, वो जाके ढूंढेंगे, उनका काम है। उनको लगता है कि हमारा जो धर्म का एक अभिन्न अंग है, हमारे मंदिर हैं वो जो तोड़े गए थे खासकर नॉर्थ इंडिया में, उन सबको मुक्त कराना एक लीगली हमारा दायित्व बनता है, उनका दायित्व बनता है, उनको लगता है, और वो करेंगे। वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हक देता है कि आप कोर्ट्स में जाके अपना बात कर सकते हैं, और वो करना हमारा हक है। तो ये जो हालात हुए हैं उधर इसलिए हुए हैं कि सर्वे नहीं होना देना चाहते थे, और वक्फ बोर्ड का भी अभी पार्लियामेंट में नाम जाने वाला है, उसको भी रोकने के लिए ये लोग कर रहे हैं। और इनका ये जो हरकत है, ये हरकत जो लोग हैं वो ज़्यादा सहने वाले नहीं हैं, क्योंकि एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, पर यूपी पुलिस भी अभी अपना हाथ थोड़ा सा ढीला नहीं किया अभी तक, क्योंकि अगर ये ऐसे खून की जो एक खूनीला एक बिल्कुल एक मर्डरस क्राउड है, जो एक मॉब है, वो लोगों को मारने के लिए आ रहा था, अगर ये पुलिस नहीं होता, उधर पुलिस सही बल में नहीं होता, और समझ लीजिए विष्णु शंकर जैन या कोई जो सर्वे करने आए उनको पकड़ के ये लोग मार भी डालते, और उस टाइम सारा दंगा होता, असली दंगा इंडिया में उस टाइम होता। तो फिर पुलिस ने एक अच्छा काम किया था और 4 लोग मर गए उधर, वो भी इन लोगों ने खुद ही मारा है उनके लोगों को। और अभी जो भी कुंदरकी में हुआ है उसका एक लग रहा था लोगों को, बीजेपी के लोगों को, वो सब कुछ होने वाला नहीं है, ये आप खुद अपने साथ मिल जाएंगे, क्योंकि इनको जब भी इनका जो एक रिलीजियस मामला आता है तो फिर ये
जो भी मुसलमानों का डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस को भूल के खुद को मुसलमान बोल के हम एक खुदा को मानते हैं, वो समझ के ये अपना एक हाथ मिला लेंगे और जो हिंदू है उसके अगेंस्ट बात करेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है अभी सर, जो क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। महाराष्ट्र में इलेक्शन में जीते हैं हिंदुओं को एकजुट रखना चाहिए, और ये हिंदू जो एकजुट ही रहेगा तभी जाके ये जो दंगे वंगे हैं इनको कंट्रोल में रख सकते हैं। और योगी आदित्यनाथ को और पावर देना चाहिए हमको। 7 जिता दिए और 27 में जो इलेक्शन होने जा रहा है उस इलेक्शन में भी जिता देना चाहिए, क्योंकि यूपी एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है हिंदुओं को लड़ने के लिए। और योगी आदित्यनाथ ने 24 का जो लोकसभा इलेक्शन है उसके बाद भी बहुत सारा जो लेसन्स है वो प्राप्त किया है उससे। और विष्णु शंकर जैन को ऐसे ही काम करते रहना चाहिए। उनको भी डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, वो डेथ थ्रेट्स को इम्पॉर्टेंट लेना चाहिए। उनको एक उपवाद के तरीके से नहीं लड़ना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए, क्योंकि ये जो जिहादी लोग हैं असली में कर भी सकते हैं कुछ, तो फिर वो हो गया उनको कुछ तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर पुलिस को प्रोटेक्शन देना चाहिए। जैसे यूपी पुलिस ने एक गलत चीज़ कर दिया था कि जो एक तिवारी जी थे ना, कमलेश तिवारी जी, उनको पुलिस प्रोटेक्शन ठीक तरह दिया नहीं था, उनका मौत हो गया। तो फिर ये लोग कर सकते हैं, ये जो धमकी वमकी देने का काम है इन लोगों का, इनका एक ये काम, इसको थ्वाट करना चाहिए। और विष्णु शंकर जैन की जो पहल है उस पहल को दूसरे जो लॉयर्स हैं उनको भी जाके सपोर्ट करना चाहिए। और हमारे जो दूसरे मंदिर हैं, जैसे जैन मंदिर है हमारे, ये दिल्ली में जो बड़ा सा बिल्डिंग है कुतुब मीनार, उधर का जो एरिया है कोतल इस्लाम का एक मस्जिद हुआ करता था, उधर जैन मंदिरों को तोड़ के बनाया था, उसके ऊपर भी केस किया है इधर हमारे विष्णु शंकर जैन ने। और भी बहुत सारे मंदिरों के ऊपर केस किया है। और भोजशाला नाम का एक मंदिर हुआ करता था, उस मंदिर को भी मुक्त करने के लिए केसेस किए हैं। और ज्ञानवापी तो है ही, और कृष्ण जन्मभूमि भी है, और भी बहुत सारे मंदिर हैं हमारे एक ऐसे नहीं बोल सकते हमारे 3 मंदिर ही बहुत इंपॉर्टेंट है और सब मंदिर हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिर ये सब मंदिरों को मुक्त कराने के लिए हमारे विष्णु शंकर जैन सर्वे के ऊपर सर्वे कराते रहेंगे और मुक्त करा के रहेंगे। तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय शिवाजी, जय भवानी, जय हिंद एंड